Welcome to Milestones in Biology. So let's start with today's video. Today I'm going to teach you about the difference between breathing and respiration. In my previous video, I have given you an idea about respiration and their types. So let's talk. Breathing is simply intake of fresh air. आप oxygen rich air simply inhale करते हैं and carbon dioxide rich foul air you release. This process is breathing. Whereas respiration is a process where it's a very complicated process where oxidation of food, oxidation of respiratory substrate, glucose takes place to release a lot of ATP, carbon dioxide and water. So this is called respiration. Breathing is a extracellular process, means ये जो होता है process वो cell के बाहर बाहर होता है. There is a tract where this process is happening, but it is not happening inside the cell. That is why it is extracellular process. Whereas in respiration it is intracellular process because this process is happening inside the cell. Fine, तो हम इसको cellular respiration भी बोलते हैं. Clear? Next is this breathing is a physical process. Here the muscles are acting. There is no change. There is no chemical change in the cell or in the tract happening. It's simply a physical process. Whereas respiration is a biochemical process because in this case a large number of enzymes are involved and there is change in the chemicals. जो भी केमिकल इन्वॉल्व है उनमें चेंज आ रहा है और एंजाइम्स इन्वॉल्व है, इसीलिए ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. यहाँ पे ये एक फिजिकल प्रोसेस है एंड नो एंजाइम इज इन्वॉल्व. Last important point is that no exchange energy released, rather used, whereas energy is released. यहाँ पे आपको पता है 38 ATP रिलीज होता है. फाइन, विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है. बट हियर इन दिस केस जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है. क्यों यूटिलाइज हो रही है? बिकॉज द मसल्स आर एक्टिंग. आप ये जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं इसमें मसल्स एक्ट कर रहे हैं और जब मसल एक्ट करते हैं, मसल काम करते हैं, उसके लिए एटीपी की जरूरत होती है. बट नो एटीपी इज फॉर्म. यहाँ पे नो एटीपी, ओनली एनर्जी इज यूज बिकॉज मसल्स are acting here. Fine. So these are the main point of difference between breathing and respiration. So remember, this is a biochemical process. Enzymes are involved. Physical process, no enzymes are involved. ATP is released. No ATP is released. Rather, it is used up by the muscles, and it is simply exchange of gases in between the environment and the lungs. And here it is the process, oxidation process happening inside the cell. That is why it is intracellular, and here cells are not inside the cell. It is not happening, so it is a extracellular process. Now I will teach you about the steps which are involved in respiration. Let's start with that. So next topic is steps involved in respiration. So respiration process तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इनफ्लो ऑफ एयर. एयर का हमारी बॉडी के अंदर जाना जरूरी है. देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड. ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा. देन oxygen will be transported to the tissues by the blood. Exchange, I will teach everything in detail. Exchange of gases between tissues and blood. Utilization of oxygen by cell
in a catabolic process and releases CO2. Fine. See, सबसे पहले क्या होगा, हम इनफ्लो करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर का, दैट इज सिंपली अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग. That oxygen rich air will move into the respiratory tract and it will move up to alveoli. There will be exchange. Alveoli में से oxygen will come into blood and blood में से CO2 will move into the alveoli. The exchange is happening because here it is the respiratory surface. What is respiratory surface? I will tell you in my next topic. So that is my next topic. So exchange is happening at the respiratory surface where surface, तो respiratory surface में alveoli and blood involve होते हैं और वहां पे blood में ऑक्सीजन आता है और blood से CO2 will move into alveoli. Then अब blood में ऑक्सीजन आ गया है, so what will happen? The blood will take up the oxygen to the टिश्यूज. टिश्यूज के पास ये ऑक्सीजन थ्रू ब्लड पहुंचता है. फिर ये हो गया ब्लड वेसल, यहाँ पे हो गए टिश्यूज. सो व्हाट विल हैपन, टिश्यूज में से टिश्यू में ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड. ब्लड में और टिश्यूज के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, मींस यहां से CO2 यहां पे एंटर होगा और यहां से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में एंटर हो रहा है. एंड देन जो ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर पहुंचा है उसका यूटिलाइजेशन होगा. कैसे? सेलुलर रेस्पिरेशन से. ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के लिए इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाएगा एंड इन दैट प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में पोर कर दिया जाएगा थ्रू द डिफ्यूजन. एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर डिफ्यूजन. गैसेस है, सो एवरी प्रोसेस दिस इज ऑल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही एक्सचेंज हो रहा है इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ओनली. डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो मूवमेंट हो रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा. सबसे पहले जब वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन टिश्यूज के पास पहुंचता है तो फिर एक्सचेंज होगा. ब्लड में से ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रहा है, फिर रेस्पिरेटरी प्रोसेस होगा, मीन सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा एंड इन दैट प्रोसेस CO2 is released and CO2 will come into the blood and through the blood again it will reach up to the alveoli and blood में से CO2 will again go back to alveoli and it will be exhaled out of the body. So these are the steps which are involved in the respiration. So again I'm telling, breathing होगा, inflow of air, exchange होगा gases का, respiratory surface है वहाँ पे तो gases का exchange होगा alveoli और blood के बीच में. फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन आएगा ब्लड उसको लेके जाएगा टिश्यूज के पास, फिर टिश्यूज के पास जाएगा, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, पर इस बार जो एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में हो रहा है. देन जो ऑक्सीजन टिश्यूज में पहुंचा है, द टिश्यूज और द सेल्स आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी सेलुलर रेस्पिरेशन and then CO2 will be released. So this is about the steps involved in respiration. Now I will teach you about the characteristic of respiratory surface. ये जो respiratory surface होता है इसके क्या characteristics होने चाहिए जिसके वजह से बहुत अच्छे से efficiently exchange of gases होना चाहिए, because that is a very crucial point जहाँ पे exchange properly होना बहुत ज़रूरी है. So let's talk about that. So the next topic is respiratory surface. So you should know what is respiratory surface. It is a surface at which exchange of gases takes place. कौन से gases? Carbon dioxide and oxygen. So वो surface को respiratory surface कहते हैं जहाँ पे exchange of gases हो रहा है. Now what should be the characteristics? जो इसके features होते हैं वो कैसे होने चाहिए? Characteristics. This is very important. कि हम किसी भी surface पे fruitfully, बहुत efficiently
अगर एक्सचेंज होना है तो उसके लिए कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस रेस्पिरेटरी सरफेस के. सो क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी सरफेस. इट शुड बी थिन एंड मॉइस्ट. थिन होगा तभी वो इजीली एक्सचेंज हो सकता है, एंड मॉइस्ट होना मतलब ऑक्सीजन में ये जो वाटर है, वाटर में, म्यूकस में ये इजीली डिसॉल्व होके एक्सचेंज हो सकता है, वो ज्यादा एफिशिएंटली हो सकता है. सो दैट इज व्हाई द सरफेस शुड बी मॉइस्ट एंड इट शुड बी थिन. सेकेंड, इट शुड बी permeable to gases. जो सरफेस है परमिएबल होना जरूरी है. परमिएबिलिटी नहीं होगी तो एक्सचेंज कैसे होगा, और एक्सचेंज नहीं होगा तो सारा प्रोसेस किसी काम का नहीं है. कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा. सो दिस एक्सचेंज, for that exchange process the surface, the respiratory surface should be permeable. It should be highly vascular. Highly vascular means rich in blood vessel. ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा रिच होना चाहिए, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होना चाहिए. जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे उतने ही ज्यादा ब्लड होगा और उतना ही ज्यादा एक्सचेंज होगा. सो it should be highly vascular means it should be rich in blood vessels for more exchange of gases. Next important point, surface area should be large. Again, surface area should be large मतलब यहाँ पे alveoli और blood vessels जो involve हैं ज्यादा सरफेस होने चाहिए. जितने ज्यादा सरफेस होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. तो सरफेस एरिया भी लार्ज होना चाहिए. नेक्स्ट इज इट शुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट with source of oxygen. Fine. तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है, और वो जो ऑक्सीजन है वो या फिर एयर में प्रेजेंट हो या फिर वाटर में प्रेजेंट हो. जैसे गिल्स है, गिल्स विल टेक अप दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होगा. इनडायरेक्ट में आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उनके पास वही एक सरफेस होता है, एक ही सेल है, इसीलिए वही एक सरफेस होता है जहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है. सो जो सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है एयर के या सोर्स ऑफ एयर के, जैसे कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन जो है वो एयर में भी हो सकता है और वाटर में भी हो सकता है. लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. फाइन. जहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है, जिस भी सरफेस पे, वहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का होना जरूरी है. जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो द रेस्पिरेशन, दिस इज आरबीसी. आरबीसी इज हैविंग अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट hemoglobin. Fine. So hemoglobin is a respiratory pigment which carries the oxygen towards the cells और वहां पे फिर वापस एक्सचेंज होता है. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का होना, रेस्पिरेटरी सरफेस के पास होना बहुत ही जरूरी होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, द
रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो रेस्पिरेटरी सरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में. तो पहला कि वो थिन एंड मॉइस्ट होना चाहिए, प्लस वो परमिएबल टू गैसेस होना चाहिए ताकि इजीली जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो सके. वहाँ पे सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है. So for that purpose only there should be the respiratory surface should be highly vascular. बहुत ज़्यादा blood vessels होने चाहिए. Then जो हमारा respiratory surface है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो सकता है with the source of oxygen, और वो source water भी हो सकता है, वो air भी हो सकता है. And lastly रेस्पिरेटरी सरफेस के पास पिगमेंट होना बहुत ज़रूरी है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आफ्टर दैट when the exchange will happen, that oxygen should be taken up by those respiratory pigment towards the cell for further process. So this is all about today's video. In today's video I have taught you about the difference between breathing and respiration. I taught you about the characteristics of the respiratory surface and I told you the steps which are involved in the respiration. So see you in the next video where I will teach you about different respiratory system, different respiratory organs involved in different organisms. Till then, take care, keep learning, be safe and stay tuned.